नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है इंसर्ट स्टेटमेंट इन टेबल। इंसर्ट न्यू रोज इनटू अ टेबल। इंसर्ट स्टेटमेंट से क्या होगा, जितने भी न्यू रोज हैं अगर आप टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग टेबल है, तो हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। वी इंसर्ट न्यू रोज इनटू अ टेबल बाय अप्लाइंग इंसर्ट इनटू कमांड। A simple example is given below. सिंपल एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, जैसा कि इंसर्ट इनटू शेल्फ नेम्स, ठीक है, 10 SS10. The insert into command is followed by the name of the table and OIN schema is required. This return is followed by the values keyword which denotes the start of the value list. The value list consists of all the values to insert the specified columns. We should not specify the columns which we want to insert in this example, so we must provide a value for each and every column in the correct order. The correct order of values can be determined by doing a select or described against the required table. The order in which the columns are displayed is the order of the values we specify. This order in the value list. If we want to specify a column individually when not filling all values in a new row, we can do this with a column list specified before the values keyword. One example is evoked below. Now that we can specify the columns in any order, our values are now in the order that we specified from the column list. देखो, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, इंसर्ट न्यू रोज इनटू अ टेबल। जो भी नई रोज हैं वो अगर आपको टेबल में जोड़ना है तो उसके लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले इंसर्ट इनटू फिर शेल्फ की जो वैल्यूज़ है वह हमें पुट करना होगी, और कितने हमें रोज जोड़ना है उसके लिए हमें नंबर्स देना होगा। तो इंसर्ट इनटू शेल्फ, फिर शेल्फ का आईडी, शेल्फ का नेम, उसके बाद वैल्यूज। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है उसमें 10 न्यू रोज इंसर्ट करनी है तो 10 न्यू रोज अप्लाई हो जाएगा। कॉपिंग रोज फ्रॉम अनदर टेबल। अब अगर हमें किसी दूसरी टेबल से अगर कॉपी करनी हो रोज को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, इफ़ यू वांट टू कॉपी द रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, हैव टू यूज अ फॉर्म ऑफ द insert command. Obviously the new table must support at least the columns that were present in the old table. This is a good method of updating a table structure. For instance, if we want to remove the number of books column from the shelf table, this is calculated field and need only be derived when required rather than stored in a table. Then we should create a new table, shelf new, and populate it with the contents of the old table. We could then drop the old table and rename the new table. An example of the insert command that accomplishes this is given below. Insert into shelf new, shelf ID, उसके बाद shelf का नाम, फिर select shelf ID and shelf name from shelf, यानी जिस भी shelf से हमें इंसर्ट करना हो नई शेल्फ आईडी, तो उसका हमें पहले शेल्फ आईडी देना होगा, फिर शेल्फ का नाम देना होगा, और जो भी हमें नई शेल्फ है वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो न्यू शेल्फ या कॉपिंग रोज फ्रॉम अनदर टेबल, अनदर टेबल से कोई भी रोज को कॉपी करने के लिए हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डेट इज कॉल्ड इंसर्टिंग नल वैल्यूज। Null values when we insert the data from detecting values directly in the query from which we have to give all the values for all the columns of table and as stated for the insert command. Insert into shelf values, next जो दे रखा है shelf values and shelf ID and shelf name. Inserting a single row at a time. If we want to insert multiple rows, then we have to fire multiple insert command. इंसर्ट कमांड से हम एक बार में एक ही रो ऐड कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रोज इंसर्ट करना है तो मैं मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कमांड को
फायर करना होगा. टू सॉल्व दिस बोथ द प्रॉब्लम वी हैव ए फैसिलिटी टू क्रिएट द मैक्रो ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड. तो इसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड मैक्रो ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड. हम मैक्रो बना सकते हैं उसका. वी यूज द कॉलम नेम हियर द एंड told the system to get the data from keyboard at runtime for appropriate column. If the data type of the column ID numeric, it is written without quotes. Otherwise, character based and date database have to written in the quotes. Output of the above query. Output दे रखा है जैसे कि हम shelf into insert into shelf values and shelf ID and shelf name अगर हमने दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आउटपुट ऑफ अबाव. शेल्फ आईडी आ गई हमारे पास 10, शेल्फ का नेम आ गया SS10. 1 रो इंसर्टेड है, एक रो हमें इंसर्ट करनी थी वह हमने कर दी. नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड अपडेट स्टेटमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग डाटा ऑफ टेबल. कोई भी अगर हमें स्टेटमेंट का यूज करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज करने के लिए तो वो चीज़ कहलाती है आपकी अपडेट. जैसे मेरे पास कोई भी डाटा था या जो पहले से मेरे पास बुक्स मौजूद थी, मैंने उस बुक्स में कोई न्यू बुक ऐड की, या फिर कोई पुरानी बुक फट गई या वहाँ से चली गई या चोरी हो गई या वहाँ पर मौजूद नहीं है तो डाटा मैंने डिलीट किया. तो डिलीट करना भी अपडेट में ही आता है, नई चीज़ जोड़ना भी अपडेट में ही आता है. यानी डाटा में आपने कोई भी मॉडिफिकेशन अगर किया है तो वो सारी चीज़ें अपडेट में ही आती है. जैसा कि नाम दे रखा है अपडेट स्टेटमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग डाटा ऑफ टेबल. यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है कि जितने भी आपके नाम हैं वही उनका काम होता है. जैसे इंसर्ट से हम रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं. अपडेट से हम जो भी अपडेट करना चाहें, चाहे वो कॉलम हो या रो हो, दोनों अपडेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे हम अपडेट करेंगे. अपडेट बुक रिकॉर्ड सेट टाइटल. टाइटल क्या है? बेसिक्स ऑफ विजुअल बेसिक. उसका प्राइस है 420. वेरे सीरियल नंबर इज 11, जो कि सीरियल नंबर क्या है उसका 11 है. तो वहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं. अपडेट बेस्ड ऑन अनदर टेबल. नेक्स्ट जो आता है अपडेट बेस्ड ऑन अनदर टेबल. अगर दूसरी कोई टेबल है वहाँ से हमने अपडेशन किया, कोई भी चेंजेस किया और आपके जो अभी प्रेजेंट में हम टेबल यूज़ करना उसमें अगर जोड़ना तो हम अपडेट बेस्ड ऑन अनदर टेबल यूज़ करते हैं. द अपडेट कमांड अलाउ यू टू चेंज द वैल्यूज ऑफ रोज in a table. You can include a where clause in the same fashion as the select statement to indicate which row you want value changed. In the same way as the insert statement, you specify the columns you want to update and the new values for those specified columns. The combination of where clause, selection of row and column specification. Selection of column allow you to point exactly the value you want to change. Unlike the insert command, the update command can change multiple rows, so you should take care that you are updating only the values you want to change. An example is given below. This example will update a single row in our book record table. एग्जाम्पल दे रखा है, इससे केवल हम एक सिंगल रो बुक रिकॉर्ड टेबल में अपडेट कर सकते हैं. We specify the table to be updated from the update keyword following the set keyword. We specify comma delimited list of column names, new values. Each column which is to be updated must be specified here. Note that you can set columns to null by using the null keyword instead of a new value. The where clause follows the last column new value specification and is constructed in the same way as for the select statement. Use the where clause to be pinpoint that which rows is to be updated. If you don't specify a where clause on update command, then all rows will be updated. This will or may not be desired result. अब अगर हम यहाँ पर कोई भी रोज या कॉलम्स को अपडेट करने के लिए नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ अपडेट नहीं होगी, हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. इसलिए हमें
जो भी रिकॉर्ड है या जिसको भी रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है उसके लिए एग्जिस्टिंग टेबल का नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अपडेट बेस्ड ऑन अनदर टेबल। उसके लिए भी अपडेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अपडेट शेल सेट नंबर ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट काउंट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। कहाँ से लेना है? बुक रिकॉर्ड से। वेयर बुक शेल्फ आईडी, जहाँ पर बुक शेल्फ आईडी है। वेयर शेल्फ आईडी इन सिलेक्ट शेल्फ आईडी फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। फिर सिलेक्ट करना है हमें शेल्फ आईडी की, कौन सी शेल्फ आईडी से हमें बुक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, वो सारा आएगा। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सब क्यूरी इन द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ हम यूज कर रहे हैं क्लोज टू इनेबल अस टू डील विथ each on a case by case basis for each selection provided from the where clause identified by the key field shelf id. We select the count of all book records belonging to that section and update the number of book fields with that value. एंड जो भी बुक फील्ड्स है उस वैल्यू के साथ अपडेट हो जाएगी। उसके लिए हमें नंबर शेल्फ सेट ऑफ बुक्स का सिलेक्ट काउंट के साथ वेयर कंडीशन का हम इसलिए यूज कर सकते कि कहाँ से हमें अपडेट करना है, कौन सी टेबल से हमें अपडेट करना है डाटा, उस टेबल का नाम हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करेंगे, इसलिए भी हम यूज कर सकते हैं अपडेट का। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग रोज विद डिलीट। अब अगर कोई भी रो हमें डिलीट करना हो तो सिंपल है, डिलीट रोज विद डिलीट। जो भी हम डिलीट करना चाहे डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या देना होगा? डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड। बुक रिकॉर्ड से डिलीट करना है वेरियर सीरियल नंबर इक्वल टू 9, जहाँ पर सीरियल नंबर क्या हो? 9 हो, तो 9 का सीरियल नंबर पूरा डिलीट हो जाएगा। उसमें जो बुक है उसका नाम भी टाइटल के साथ वहाँ से डिलीट हो जाएगा। द डिलीट कमांड अलाउ यू टू रिमूव द रोज फ्रॉम अ टेबल। You can include a where clause in the same fashion as the select state। जैसा कि हम select statement में यूज करते हैं उसी तरीके से हम डिलीटिंग रोज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Which rows you want to delete in nearby all cases you should specify a where clause। Running a delete without a where clause deletes all rows from the table। अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? जितना भी रोज है आपकी सारी डिलीट हो जाएगी पूरी टेबल में से। अनलाइक द इंसर्ट कमांड, द डिलीट कमांड कैन चेंज मल्टीपल रोज, सो यू मस्ट टेक ऑलमोस्ट केयर दैट यू आर डिलीटिंग ओनली द रोज दैट यू वांट टू बी रिमूव्ड। इसलिए हमें जो भी रोज रिमूव करना है केवल उसी का नाम देना होगा। सी द ट्रांजेक्शन discussion for methods of limiting damage from accidental deletion. An example is given below. This example will delete a single row in one book table। एक बुक टेबल में एक सिंगल रो को डिलीट करना हो। The delete from command is used by the name of the table which a row will be deleted, followed by a where clause। Specify the column condition values for the deletion। डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 9। तो डिलीट करेगा बुक रिकॉर्ड से जिसका भी सीरियल नंबर 9। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं बाय डिफॉल्ट कि हमें डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, अगर हमने डायरेक्टली लिख दिया वेयर सीरियल नंबर नहीं लिखा या सीरियल नंबर इक्वल टू 9 लिखना भूल गए या डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड वेयर या डिलीट फ्रॉम बुक रिकॉर्ड कर दिया तो आपका बुक रिकॉर्ड जो है वो जितनी भी रोज रहेगी वो सारी डिलीट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए हमें वहाँ पर नंबर स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। जब तक हम नंबर स्पेसिफाई नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अगर करते हैं तो पूरा ही डाटा एक साथ आपका डिलीट हो जाएगा। दिस डिलीट रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक रिकॉर्ड table except the one specified। Remember that if you omit the where clause all the rows will be deleted automatically। जैसा कि मैंने बताया कि आप omit कर देते हो अगर where clause को तो जितना भी रोज है उसका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जितनी भी रोज है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी।